बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल टू लर्न। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ प्रोविडेंट फंड, इट्स डिफरेंट टाइप्स एंड ट्रीटमेंट इन टैक्स। ये इनकम टैक्स बीकॉम पार्ट 2 का जो सब्जेक्ट है उसके इम्पोर्टेंट नोट्स हैं पेपर के लिए। आपके लिए बहुत आसान से और इजी से नोट्स हैं, आपके बहुत काम आएंगे। इसके अलावा मज़ीद जो इनकम टैक्स से रिलेटेड नोट्स है उसकी मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। स्टूडेंट वहाँ से जाके देख सकते हैं, सारी वीडियोस सुन सकते हैं। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल नोटिफिकेशन लाजमी दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताना लाजमी। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्रोविडेंट फंड, इट्स डिफरेंट टाइप्स एंड ट्रीटमेंट इन टैक्स। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रोविडेंट फंड इज़ फंड मेंटेन बाय मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। ये वैसा फंड होता है जो गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर की वेलफेयर के लिए बनाते हैं। ऑल्दो मोस्टली एम्प्लॉयज रिसीव दिस अमाउंट आफ्टर रिटायरमेंट, हाउएवर इन सम केसेस it can be demanded even before retirement. Types of provident fund, there are 3 different type of provident fund. Government provident fund जिसे जीपी फंड कहते हैं। Government provident fund is maintained in public sector, government organization or semi government organization. It is also called stationary provident fund. Some example of organization also called organization maintaining government provident fund are WAPDA, PIA, railway and law enforcement agencies. Recognized provident fund, many private organizations also maintain provident fund. If their provident fund is recognized by government commissioner of income tax, it is called recognized provident fund. If the CIT must down the application on appeal made federal government of revenue, recognized provident fund is beneficial for both employed and employer. Unrecognized provident fund, if any private organization maintain provident fund but it did not recognize it with CIT or CIT has turned down the requirement of, it will be called unrecognized provident fund. The reason could be following: either no application are submitted for recognition, the legal requirements are not fulfilled, the application is turned down on some technical ground. Component of provident fund कौन से होते हैं? In the mechanism of provident fund, both the parties, employees and employer, contribute some amount monthly or annually. This amount not only piles up every year but also generate further amount. There are 3 components of provident fund. Employees contribution, employees contribute some amount toward their provident fund on monthly basis. Mostly the contribution of employees is deducted from their salaries. हर महीने जो सैलरी से डिडक्शन होती है वो होती है वो। This is called employee contribution toward provident fund. Employer contribution, employer also contributes some amount toward provident fund. In most of the cases, the amount of contribution of employee is same as the contribution of employee. तो जितना अगर एम्प्लॉय की पे से कट रहा है 2000 तो 2000 ही एम्प्लॉयर भी देता है जो ओनर होता है। इंटरेस्ट प्रॉफिट, द कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर आर इंसेंटिव in some profitable business are invested in some profitable business or government scheme, mostly in order to eliminate the risk. This amount is invested in bank pay the organization interest at a certain rate. Accumulated balance, the amount contributed by both employees and employer keep on generating profit interest in bank. This amount is then paid to the employees. When does employee receive this finance? In the following cases, amount collect is paid top employees ऑन हिज रिटायरमेंट पे मिल सकता है। इन केस ऑफ हिज डेथ टू हिज फैमिली को मिल सकता है। एम्प्लॉय लीव और द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर रिटायरमेंट। और टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड हम पढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड इन टैक्स कंट्रीब्यूशन, अगर एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन है तो जीपी फंड ऑलरेडी इंक्लूडेड विया बेसिक सैलरी, तो आपकी बेसिक सैलरी में इंक्लूड है तो उस पर टैक्स सैलरी के हिसाब से कट चुका होता है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ऑलरेडी इंक्लूडेड विया बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी से इसमें कट जाता है। और अनरिकॉग्नाइज ऑलरेडी इंक्लूडेड विया बेसिक सैलरी, तो जो एम्प्लॉयज़ की कंट्रीब्यूशन होती है जिसको मिलना होता है उसकी तो सैलरी से कट गया होता है। तीनों केसेस में उस पर टैक्स नहीं लगता। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जाम्प्ट है और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अप टू 10% एग्जाम्प्ट है और अनरिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में नहीं लगता। बैंक इंटरेस्ट उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। और रिकॉग्नाइज में 1/3% ऑफ सैलरी ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 16 गिवन रेट, विच एवर इज लेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इंटरेस्ट अमाउंट एंड बैलेंस विल गो टू बी टैक्सेबल इनकम। और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एग्जाम्प्ट है।
प्रोविडेंट फंड सैलरी क्या होगी, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस, यानी जो आपको डियरनेस अलाउंसेस मिले होते हैं वो बेसिक सैलरी में ऐड करके फिर आपको प्रोविडेंट फंड की टैक्स ऊपर लगेगा। तो ये था हमारा प्रोविडेंट फंड का क्वेश्चन। बहुत आसान था और बहुत इंटरेस्टिंग था। आई होप स्टूडेंट को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।